Now class 10th we are focusing on the new chapter sulfuric acid. Initially I have written the page numbers because I think you are not seeing the videos, that's why you are not aware from which pages, because in the video I am describing the page number also, but you are not focusing on it. So please see the page number. The page number 209 to 212 is there in your reduced syllabus. Most of the things are been removed now, so we are only focusing on that part which is there in your syllabus. So let's start with this chapter, sulfuric acid. If you remember sulfuric acid, you know the formula for sulfuric acid is H2SO4. 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of oxygen are there in case of sulfuric acid. So in your course basically chemical properties are there for the sulfuric acid. So we'll focus on the chemical properties, because rest of the things like your lab methods or your manufacturing industrial methods is been removed, and this is one of the very important portion for your board examination. 5 marks question come from this particular portion, so please don't forget that. So what properties you have to see means physical is again is not there. Chemical properties, if you focus on the sulfuric acid, there are few you can say there are the different conditions, or you can say the nature of sulfuric acid. So according to that only we have to see. The first thing which we have to focus, that acidic nature. Again and again we are always saying that sulfuric acid, na? So you know from when I am speaking it, you can understand it is an acid. So it has a acidic nature. So it says that it acts as an acid when diluted. ठीक है, तो diluted condition में sulfuric acid acts as an acid. Now very initial stage, if you see when I have shown you in the videos also, like with the help of different indicators you can easily identify. जैसे best example था phenolphthalein. So phenolphthalein when we were adding in the acid it was remaining colorless. एक तो जनरल आइडिया था. अगर लिटमस को देख के चलें तो भी आपको मालूम है कि ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड in case of acid. So these are the general things. So these are basically not considered in this case because all the acids reports the same story. So how you can identify that this is the HCl or this is HNO3 or this is sulfuric acid? So you should have a specific answer for that. ठीक है, because लिटमस पेपर से भी सब वही सेम रिपोर्ट करेंगे. आप कोई भी इंडिकेटर्स लेंगे, सारे एसिड एक ही स्टोरी बताएंगे आपको. तो आपको स्पेसिफिक आंसर देखना है कि ये एसिड डाइल्यूट कंडीशन में कैसे दिखता है. So now let's come to the sulfuric acid. If you see the sulfuric acid, you know the sulfuric acid when when you are adding in the water in aqueous condition, this sulfuric acid goes basically aqueous condition में जाएंगे ना, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोसिएशन पे जाता है, और डिसोसिएशन में जाके डिसोसिएट हो जाता है. एसिड बेस सॉल्ट्स में हमने देखा है H+ आयंस प्लस SO4. देखो पहले ये लिखो जो इनके चार्जेस, मतलब क्या उन्हें कैटाइन बनाया, क्या एनाइन. आफ्टर दैट यू बैलेंस इट. 2 atoms of H are there, so put 2 over here. So it is balanced condition. So after dissociation means from here you can see this particular sulfuric acid is going for the dissociation and giving you H ions. But this H ions is not only sufficient, because this H ions combined with water and it gives you hydronium ion, है ना. यही तो होता है हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए. H+ प्लस वाटर रिएक्ट करेगा H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन. व्हाट इज दिस? हाइड्रोनियम आयन. देन ओनली यू से अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज अ एसिड व्हेन इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन्स. H आयन्स वो आपको देगा, वो वाटर से कंबाइन करेगा हाइड्रोनियम आयन्स. बट यू सी दीज टू रिएक्शंस आर, दिस इज रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2. ये दोनों रिएक्शंस में H जो है वो बैलेंस नहीं है. ओवर इट इज़ 2, इट इज़ 1. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन by 2. Now this reaction changes to 2H plus twice of water gives you 2 hydronium ions. ठीक है, हाइड्रोनियम आयन्स यहाँ आपको मिलेंगे. So this way you can balance your equation and you can say that this hydronium ion is be formed over here. Now you can write down this balancing. ये दोनों equations को लिखिए. एक तो ये जो आपने ये लिया है और एक ये लीजिए. Now by this you can easily judge your reaction. So please see when you are writing it, sulfuric acid will come. Now these two are coming in different heads. एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है. ये मेरा राइट हैंड है तो राइट हैंड है, एरो के इधर लेफ्ट साइड है, इट्स लेफ्ट. सो दे कैन बी ईजिली रिमूव. यू आर नॉट लाइक मैथ्स, यू आर नॉट कैंसलिंग इन केमिस्ट्री, बट इट अंडरस्टूड दैट दीज टूज आर इन ऑपोजिट साइड, सो दे आर रिमूव्ड. सो दिस थिंग you write down water over here. How much you will get? You will get 2 hydronium ions
plus SO4 minus 2 सल्फेट आयन. सो दिस इज़ द रिएक्शन विच यू कैन सी. एक सिंपल आंसर अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ, जैसे हमने अगर एसिड देखा तो ब्लू लिटमस changes to red. This thing I have shown you in the video also when we are talking about acid, base and salt. I'll again share that video so you can understand कि why it is acid. क्योंकि blue litmus changes to red एक जनरल आइडिया केमिकल आपने टेस्ट करा. और मिथाइल ऑरेंज अगर फिनोफ्थलीन देखते हैं, फिनोफ्थलीन when you are adding it in acid it's remain colorless. If you are adding methyl orange basically it's orange in color, it changes to pink in color अगर एसिड में आप डालते हैं. तो these observations you can judge from the test also. Now we are going towards chemical properties, so we will focus with the reaction parts. In our course there are many heads, so we will start with the first reaction, like active metal reacts with acid, it gives you salt प्लस हाइड्रोजन गैस. ये फर्स्ट स्टेप है. एक्टिव मेटल्स यू नो देयर आर मेनी एक्टिव मेटल्स. आप जिंक ले सकते हैं, Fe ले सकते हैं, ठीक है, Pb ले सकते हैं, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए. जब भी ये मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड से, एसिड शुड बी इन डाइल्यूट कंडीशन. क्योंकि अभी हमने बात करी है कि सल्फिक या कॉन्सेंट्रेटेड मत यूज़ करिएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज़ नॉट बिहेविंग एज अ दिस थिंग, दे डोंट गो फॉर डिसोसिएशन. सो डाइल्यूट के लिए लेंगे क्योंकि वो डिसोसिएशन पे जा रहा है. अब आपने रिएक्शंस बनाया है, जिंक प्लस H2SO4, it give you salt ZnSO4 प्लस H2 गैस इज़ बीन रिलीज. तो यहाँ कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है आपकी? हाइड्रोजन गैस इज़ बीन रिलीज हो गई है. सो अ क्वेश्चन कम्स दैट, एक क्वेश्चन आएगा, नेम द गैस इवॉल्व when zinc, it's not necessary they give you zinc, they can give you Fe, they can give you Pb, it's their choice. Zinc reacts with dilute sulfuric acid. So what is your answer? Name पूछा है, तो your answer should be hydrogen gas. H2 if you are writing then they are giving you 0, but this thing because name is भी ना, अगर यह स्टेट वर्ड आ जाए तब ये एप्लीकेबल है H2. लेकिन आप फिर भी हाइड्रोजन गैस और उस कंडीशन में स्टेट में, अगर स्टेट होता ये क्वेश्चन तो आपका आंसर क्या होता? हाइड्रोजन गैस, आप H2 भी लिख दीजिए, ठीक है. बट नेम में ओनली दिस इज़ एक्सेप्टेबल. दिस इज़ इफ़ यू राइट दिस फॉर्मूला यू आर राइटिंग, यू विल गेट 0. सो गेटिंग यू माई पॉइंट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना? सेकेंड क्वेश्चन दे आस्क यू द रिएक्शन ऑल्सो. तो सेम रिएक्शन कुछ भी बोल दिया. राइट डाउन द रिएक्शन, व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. या एक क्वेश्चन आया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट sulfuric acid. So over here your answer is hydrogen gas is evolved, hydrogen gas is evolved with a pop sound. ठीक है. तो ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं विच यू हैव टू राइट डाउन. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. अब जैसे सपोज करो टीचर आपको Fe के साथ दे देती है, तो आपने क्या लिखा? FeSO4 प्लस H2. तो ऑब्जर्वेशन तो सभी का सेम है ना गैस के टर्म्स में. ये जो कॉमन, ये 3 क्वेश्चन तो कॉमन ही है, बस रिएक्शन फ़र्क है थोड़ा. ये 2 तो सेम ही है. अगर Pb टीचर देती है देन ऑल्सो PbSO4 प्लस H2, ये कंडीशन आपकी आती है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. तो यहाँ कोई भी मेटालिक ऑक्साइड आप यूज़ कर लीजिए, कोई भी, जैसे Na2O आपने यूज़ कर लिया, K2O ले लिया आपने, MgO ले लिया, CaO ले लिया. इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज दे हैव नॉट स्पेसिफाई यू द थिंग्स. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज थिंग्स. तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या रिएक्शन बना रहे हैं. ये नहीं कि अगर बुक में ये दिया है ये नहीं दिया, देन यू आर सेइंग मैम इट इज़ आउट ऑफ कोर्स. इट इज़ नॉट आउट ऑफ कोर्स. सो मेटालिक ऑक्साइड दे हैव गिवन यू द सॉल्ट एंड वाटर इज जॉइंट. यू नो द मेटालिक ऑक्साइड Na2O रिएक्ट जैसे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ इट विल फॉर्म यू द सॉल्ट दैट इज़ Na2SO4 प्लस वाटर.
अब के टर्म में है, पोटेशियम के में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू रिप्लेस योर Na. सो इन प्लेस ऑफ Na यू आर राइट डाउन K2SO4 प्लस वाटर। देखो बेटा यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आता है। अब इसमें आउटकम क्या, वाटर इज़ बीन फॉर्म, राइट। एंड समटाइम्स दे आस्क यू व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट इट इज़। वैसे तो तुम्हें मालूम है कि इट इज़ पोटेशियम सल्फेट, दिस इज़ सोडियम सल्फेट। बट अगर इनसे टाइप पूछा जाए, टाइप ऑफ सॉल्ट, तो ये कौन सा सॉल्ट है, व्हाट योर आंसर विल बी, नॉर्मल सॉल्ट विल बी योर आंसर, राइट। दीज थिंग्स आर नॉट रिटन इन द बुक, so please focus on it. So again I am writing few more reactions, zinc oxide, sulfuric acid, so ZnSO4 plus water, copper oxide plus H2SO4 give you CuSO4 plus water. So these things you can focus on it, and these reactions are there, you can use other reactions also. So I think it's clear to you all. अगर यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड का दे दिया है तो भी आप कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट H2SO4, इट गिव्स यू, मैं एरो लिख देती हूँ, गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब सपोज करो हमने NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करा, डाइल्यूट कंडीशन में चल रहा है, Na2SO4 प्लस वाटर। सो यू कैन बैलेंस इट बाय योर ओन, 2 यू पुट ओवर हियर बिकॉज 2, सो 2 ओवर हियर एंड पुट 2 ओवर हियर वाटर के लिए, ठीक है। अगर KOH के साथ आप करेंगे तो सेम, बस Na की जगह आपको क्या लगाना है, K लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। Plus we are focusing on the carbonate, and you know that carbonate is when the metal carbonates reacts with dilute sulfuric acid, it gives you salt and water, and carbon dioxide gas is being removed. So you can use any of the carbonates. Suppose I use potassium carbonate and it reacts with sulfuric acid, it will give you a salt like potassium sulfate. Again please see, this is the normal salt and CO2 gas is being removed. So this way, if suppose sodium carbonate you are using, then in sodium carbonate you just put, in place of K you will write down Na, and the same way the reaction will be formed, ठीक है। अब आप कुछ और कोई भी कार्बोनेट ले सकते हैं, जैसे कि आपने कॉपर कार्बोनेट लिया, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो व्हाट यू विल गेट, कॉपर सल्फेट, यू विल गेट वाटर एंड यू विल गेट CO2 गैस। तो वही कंडीशन है, रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं, दे कैन आस्क यू नेम द गैस दैट इज़ ऑब्टेन। तो यहाँ पे कौन सी गैस है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ बीइंग ऑब्टेन, क्लियर है। तो ऑब्जर्वेशन में भी अगर पूछा जाता है तो यू विल राइट डाउन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ बीइंग विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग, ठीक है। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट टीचर ने दिया रखा है तो आप मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि ओनली द रिएक्शन दैट इज़ गिवन इन योर बुक, द सेम रिएक्शन you will focus, you have to, sorry it's sulfate, you have to focus the other part also, plus CO2. Now bicarbonates, please children make sure that bicarbonates is also, we also called as hydrogen carbonate, ठीक है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये भी आपको क्या देगा, सॉल्ट देगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है, आपको वाटर देगा, साथ में CO2 देगा। आपको बैलेंसिंग करनी है, आपने यहाँ 2 लगाया, यहाँ आपने 2 लगाया, यहाँ पे आपने 2 लगाया, ठीक। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट की कंडीशन। मतलब कंडीशन क्या हो गई है, आपका कोई भी मेटालिक बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी किस कंडीशन में होना चाहिए, डाइल्यूट। वो आपको सॉल्ट देगा, साथ में आपको वाटर देगा, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो यहाँ पे आपने KHCO3 लगाया अगर पोटेशियम के साथ है आपका,
और आपने K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 बैलेंसिंग करने के लिए 2 पुट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट हेड इज सल्फाइड। सल्फाइड्स अगर आपके पास आ जाता है, सल्फाइड टी वाला लेते हैं पहले। सल्फाइड होता है SO3-2। जैसे कोई भी आपका मेटालिक सल्फाइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो आपको सॉल्ट देगा। इट विल गिव यू सॉल्ट, इट विल गिव यू वाटर एंड इट विल गिव यू SO2 दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। अब जैसे कोई भी ले लिया, सपोज करो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, नाम तो पता है सोडियम सल्फाइड। इट्स रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स यू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस SO2। बैलेंसिंग करना है तो यू कैन बैलेंस। इफ इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस देन देर इज़ नो नीड टू बैलेंस। इट्स ऑलरेडी बैलेंस so there is no need for balancing. You can also use potassium sulfite. In place of Na you put K. ठीक है। तो ये क्या नाम है इसका? पोटेशियम सल्फाइड। अब आपने बाईसल्फाइड यूज़ कर लिया है तो आप बाईसल्फाइड्स कर लीजिए। बाईसल्फाइड्स, अब बाईसल्फाइड्स हो जाता है, या इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। तो आप क्या करोगे, ये होता है HSO3-। सो यू कैन यूज़ सोडियम बाईसल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव यू सॉल्ट दैट इज़ सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस SO2। बैलेंसिंग के लिए 2 लगाइए। बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे 2 लगाइए, यहाँ पे आप 2 लगाइए। ठीक है। तो ये क्या है, आपका नाम क्या है इसका? सोडियम बाईसल्फाइड। आप पोटेशियम बाईसल्फाइड ले सकते हैं, KHSO3 प्लस H2SO4 ट्वाइस लगाया, गिव यू K2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर प्लस ट्वाइस ऑफ SO2। ठीक है। तो ये क्या नाम हो गया आपका? पोटेशियम बाईसल्फाइड। इट्स ओके। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट्स, सल्फाइड। सल्फाइड S-2 होता है। तो आपने कोई भी मेटालिक सल्फाइड यूज़ करा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट विल गिव यू, ये रिएक्शन ऐसे ले लेना, ये आपको देगा सॉल्ट प्लस H2S गैस। H2S गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है। ये आपको हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। ये आपकी रॉटन एग स्मेल इसका होता है। मैं आपको सब लिखवा दूँगी तो आपको आसानी रहेगी। अब आपने सपोज़ करो Na2S सोडियम सल्फाइड यूज़ करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसने आपको सॉल्ट दिया Na2SO4 प्लस H2S गैस दी। अगर आप K2 के साथ यूज़ करें तो सेम ये रिएक्शन आप रहेगा, ZnS हो सकता है, FeS हो सकता है ना, ETC। अब एक इनमें से ले लेते हैं क्योंकि बैलेंस इसकी 2 है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये आपको देगा ZnSO4 प्लस H2S। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आई थिंक क्लियर टू यू। देयर आर फ्यू गैसेस, जैसे H2S गैस निकली थी हमारी, CO2 गैस निकली थी, SO2 गैस निकली थी, H2S गैस निकली थी। ये हमने 4 गैसेस देखी थी जो हमारे पास थी। ये हाइड्रोजन गैस थी, ये कार्बन डाइऑक्साइड ना, गैसेस लिख रहे हैं, और सल्फर dioxide. Now you know when it is being obtaining, and hydrogen sulfide। ये आपको कौन सा था? रॉटन एग स्मेल। ठीक है। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि किसकी क्या स्मेल है। प्लीज़ लर्न दीज ऑब्जर्वेशन। लाइक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, ऑडरलेस, बर्न्स विथ पेल ब्लू फ्लेम्स विथ पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस एफेवेसेंस शो करती है,
सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर है, सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका, ठीक है। अगर H2S गैस दिख रही है आपको, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी डी है ये, हाइड्रोजन सल्फाइड है और रॉटन एक्समैन। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन। इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स, अगर इनमें ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा तो आप यही चीज़ लिखेंगे, मतलब जिसमें जो गैस निकल रही है, तो आपकी दिस विल बी 1 मार्क क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड। आई थिंक दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू। नाउ दिस इज द वन पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी विच वी हैव डिस्कस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन एसिड when it is used as in dilute condition, not in concentrated। तो we have covered this thing। आपको ये समझ में आ गया, ये इनका प्रूव होता है। समटाइम्स इट्स एक रिएक्शन गिवन होगी आपको, सपोज करो ये रिएक्शन दी रखी है, अब आपसे पूछा जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन शो कर रही है, तो हमें मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन एसिड व्हेन इन डाइल्यूट कंडीशन और एसिडिक नेचर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कभी का ये भी पूछा जाता है कि रिएक्शन बनाने को भी आती है, कभी का रिएक्शन दी रहती है, पूछा जाता है कौन सी टिपिकल प्रॉपर्टी डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड शो करेगा। तो आपको यहाँ मालूम है आपका आंसर क्या होगा, एज एन एसिड व्हेन डाइल्यूट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एज एन एसिड व्हेन डाइल्यूट, और आप ब्रैकेट में इसको एसिडिक नेचर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपकी होती है। सो आई थिंक होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। प्लीज़ लर्न इट and we'll discuss the remaining properties in the next video.